Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is uh, Thomas Hobbes and John Locke. These two are contractualists. They have talked about the state of nature, natural rights, natural liberties, and they have given the knowledge that what was there when there was no state, when there was no government. What was there? Most of the time, like primitive society, primitive people, before the emergence of state and before the emergence of government and democracy or monarchy and so on and so forth, these two guys, even one more, we have contractualist and Rousseau, but that is not our today's topic. And they have talked about what was there when there was no government, what was there when there was no state, what was there when there was no society. And they have given a lot of knowledge. Particularly, you are going to understand the purpose of the state, the purpose of the civil society, and the purpose of the government. You are going to ascertain the concepts of absolute sovereignty and popular sovereignty. So, studying states, sovereignty, forms of governments, without understanding, assimilating the ideas of Thomas Hobbes, John Locke, is meaningless. They are highly and extremely important political philosophers. Without them, understanding states, forms of states, or sovereignty, forms of sovereignty, governments, forms of governments, that becomes impossible. And that is the reason these three philosophers, Rousseau, John Locke, and Thomas Hobbes, have got tremendous significance in CSS examination as well. And every year, you will come across a question on these three great philosophers in one way or the other. But there will be some of the ideas related to these three people. Okay. So this is just the importance of these philosophers. Kindly share this lecture in Safe 6 WhatsApp group. Invite your friends so that they come and join the class without any further delay. And then we are going to talk about a lot of topics today. A lot of topics. In the caption I have given that there are only two philosophers like Thomas Hobbes and John Locke, but they have their own concepts. And we are going to talk about state of nature. We are going to talk about natural law. We are going to talk about natural rights. We are going to talk about the social contract theory. We are going to talk about the forms of governments. We are critically analyzing which form is the best form, which form is prevalent, why they have given such and such ideas. So today's all those students who will miss the class will be unlucky, because I'm going to give you concept clarity of all these topics, and these topics can be utilized in other topics of political science as well. For example, if there is a general question on state, you can
utilize the ideas of these two philosophers. If there is a question on sovereignty, you can utilize the knowledge of these two philosophers. And if there is an essay on politics, so these two theories or these two philosophers can be utilized there as well. So that is why now you have entered the real politics. So far you have studied a lot of things, but now you are going to study the philosophers, and these philosophers are going to give you concept clarity of all the topics that you studied with me in my previous lectures. Okay, so let's move on to our topic, and that is, the first one is Thomas Hobbes. Thomas Hobbes की जब हम बात करते हैं, so he is really important and famously known for his famous work, The Leviathan. Leviathan is his work on political theory, and in which he talked about the state of nature and social contract theory. Before understanding his philosophy, we need to understand his era as well. Like Machiavelli, he was also the creature of civil war. जैसे फ्रांस में इटली में सिविल वार था इन द टाइम ऑफ Machiavelli, और उसने एब्सोल्यूट मोनार्की और बड़ी सख्त बातें की अपनी फ्रेंड्स के लिए. इसी तरह थॉमस हॉब्स भी, दैट वाज आल्सो द क्रीचर ऑफ सिविल वॉर. इंग्लैंड में सिविल वॉर था, जिसकी वजह से इसके नजरियात ऐसे बने कि इसने चाहा और देखा कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक अनलिमिटेड रखने वाला, पावर्स रखने वाला शख्स या एब्सोल्यूट मोनार्क इनको ठीक कर सकता है. साथ में इसके नजरियात ये बने, पेसिमिस्ट बना. ये पेसिमिज्म अपनी जहन में रखे. व्हेनेवर यू हियर द वर्ड थॉमस हॉब्स, तो आपके जहन में पेसिमिज्म आना चाहिए कि वो एक पेसिमिस्ट था. मैकियावेली ने जैसे कहा था कि ह्यूमन जो है ये क्या है, ब्रूटिश है, ये सेल्फिश है, ये जो है अपनी इंटरेस्ट को देखता है. इसी तरह थॉमस हॉब्स ने भी जो है ह्यूमन नेचर के बारे में ये कहा कि ह्यूमन बाय नेचर इज सेल्फिश, ब्रूटिश, क्रूअल, बारबेरिक, अनसिविलाइज्ड, फ्रॉड, चीटर, जो भी आप नेगेटिव एडजेक्टिव्स लगाते हैं, ये सब जो है इंसान में मौजूद है. फिर ये कहता है थॉमस हॉब्स कि इंसान का जो नेचर है ये तो ऐसा है, तो जिस सोसाइटी में ये रहता है उस सोसाइटी में फिर कियास भी होगा, वार भी होगा. फिर आता है, ये बात करता है स्टेट ऑफ नेचर की. स्टेट ऑफ नेचर की बात जब करता है तो स्टेट ऑफ नेचर है क्या चीज? कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि सर व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर. नाम से जाहिर है, स्टेट ऑफ नेचर मतलब वो स्टेट, वो दौर या वो जगह जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचर के लॉज थे, नेचुरल राइट्स थे, और इंसान अपनी नेचर के मुताबिक रह रहा था. स्टेट ऑफ नेचर का मतलब यह है कि कोई वो नहीं था, कानून नहीं था, लॉ नहीं था, कोई जज नहीं था, ये कुछ भी नहीं था. सिर्फ और सिर्फ कियास था.
लड़ाई थी, झगड़े थे, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। तो हॉब्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान जो है, इंसान लड़ता था, झगड़ता था। एवरी मैन was in a state of war against every other man, या state of nature according to Hobbes was a state of war against all। ये हॉब्स के नजरियात ये हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता था, झगड़ता था। अच्छा, बस यही हालात थे। अब स्टेट ऑफ नेचर में लोग क्या फॉलो करते थे, फिर ये जो है थोड़ा सा डिस्टिंक्शन देता है नेचुरल राइट्स का भी और नेचुरल लॉस का भी। नेचुरल राइट्स और नेचुरल लॉज अगर आप लोगों को समझ आ गए, फिर आपको स्टेट ऑफ नेचर और ये हालत जंग में क्यों थे, हर शख्स डर और खौफ का फिजा जो था वो क्यों था, वो फिर खुद समझ आ जाएगा। नेचुरल लॉज की बात जब हम करते हैं तो नेचुरल लॉज वो लॉज होते हैं जो नेचर की तरफ से हैं। नेचुरल लॉ इज डिटरमिन्ड बाय रीजन। नेचुरल लॉ वो लॉ है जो इंसान अपनी जहन को इस्तेमाल करके जो है डिसाइड करता है कि हाँ ये नेचुरल लॉ है। मिसाल के तौर पर, अब मैं आप लोगों को मिसाल दूंगा, बुक में मिसाल नहीं है, anyhow you will understand it easily with this example। नेचुरल लॉ जो है, मिसाल के तौर पर आपको मैं कह दूं कि अब एक इंसान है, उसको जो है जरूरत पड़ती है उसकी खुराक की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जाएगा किसी दरख्त से फल तोड़ेगा और वो खाएगा। ये क्या है, इट्स समथिंग नेचुरल, ये तो नेचुरल है। एवरीवन इज सब्जेक्ट टू हंगर, सबको भूख लगती है। अब इंसान नेचुरली अपनी रीजन को इस्तेमाल करके वो खुराक को ढूंढता है। उसको सेक्स की जरूरत पड़ती है तो वो अपोजिट पार्टनर को ढूंढता है। ये नेचुरल लॉ है, मतलब बाय नेचर, ये नेचर में है इंसान के। इसको भूख भी लगेगी, इसको जो है अपनी जो क्या है सेक्स के लिए भी इंसान को जरूरत पड़ती है। इसी तरह जो है और भी जरूरियात हैं। फिर एक और जरूरत आती है प्रोक्रिएशन की, बच्चे पैदा करने की। अब इसके लिए भी नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ बच्चे पैदा करने की ये है, कि दो अपोजिट सेक्स का मिलाप जो है, मर्द और औरत, मेल एंड फीमेल, एंड दिस इज समथिंग नेचुरल। बच्चे दो मर्दों से पैदा नहीं होते, दो औरतों से बच्चे पैदा नहीं होते, दैट इज अननेचुरल। ये नेचुरल है ही नहीं, कुदरत ने ये कानून बनाया ही नहीं है। तो अब ये बात जो मैंने कह दी, कहां से कह दी, किसी किताब में लिखा है? नो, इट इज समथिंग बेस्ड ऑन रीजन। ये रीजन पर है, इंसान अपना जहन इस्तेमाल करता है। अगर एक इंसान को बच्चे चाहिए, सो ही नीड्स द पार्टनर ऑफ अपोजिट सेक्स। इसी तरह जो कानून बनाया गया, कानून पहले से था अकॉर्डिंग टू हॉब्स, वो कानून वो नहीं था, आर्टिफिशियल नहीं था जैसे इंसान ने अब बनाया है आईन की शक्ल में, बल्कि नेचुरल लॉज थे और इंसान नेचुरल लॉज के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसी तरह ख्वाजा वलीउद्दीन, व्हाई होमोसेक्सुअल आर डिसग्रेसिंग नेचर? इसका जवाब बड़ा जबरदस्त है। मैं आपको जो है, आपका कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है सेक्सुअलिटी पर, ठीक है, और आप मुझसे आखिर में ये क्वेश्चन करें और ये सबके लिए जो है बड़ा लाजमी है इसका आंसर। आई विल गिव आंसर टू होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन एंड गेज एंड व्हाटएवर, इवन बाइसेक्सुअलिटी, क्वेयर जो जेंडर है, सब के बारे में आप लोगों को मैं आज इस लेक्चर में बात करूंगा। बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, अभी
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचुरल लॉ की मिसालें। ठीक है, प्रोक्रिएशन, बच्चे चाहिए, तो बाय नेचर नेचुरल लॉ ये है, कानून ये है कि आप जाएं और जो है अपोजिट सेक्स के साथ अपना मिलाप बनाएं, एंड देन यू विल हैव चिल्ड्रन, बेबीज। सही, ये नेचुरल लॉ है। एक और मिसाल देता हूं, चलो इससे भी थोड़ा सा अच्छा। बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, अब उसको खुराक की जरूरत पड़ती है। खुराक की जरूरत पड़ती है तो खुराक उसे कौन देगा? खुराक उसे जो है मां देगी, बिकॉज शी पोजेसेस मिल्क, उसके पास दूध है, नॉट द बेबीज फादर। ठीक है, सबसे पहला खुराक जो आएगा मां की तरफ से आएगा। अब मतलब जिम्मेदारी मां पर आएगी, पहली जिम्मेदारी। सवाल यह है कि ये क्यों, ये कौन सा कानून है? तो फिर इसका जवाब है इट इज अ नेचुरल लॉ। ये नेचर की तरफ से है। बायोलॉजिकली शी इज मेड टू फीड द बेबी द मिल्क। ठीक है, कि वो अपने बेबी को जो है मिल्क पिलाएगी। वो अलग बात है कि किसी में बीमारी होगी, अब उसका दूध नहीं होगा, वो अलग टॉपिक है। लेकिन बाय नेचर जो है, बाय नेचर कानून, नेचुरल लॉ ये है कि मां जो है अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। ये क्या है? इट इज समथिंग नेचुरल। ये नेचुरल लॉ है। अगर इस नेचुरल लॉ की आप लोगों को समझ आती है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग फिर स्टेट ऑफ नेचर को भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं पेपर में, क्योंकि थॉमस हॉब्स इन सारी चीजों को जोड़कर फिर स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करता है। असदुल्ला, आवर टॉपिक इज नॉट होमोसेक्सुअलिटी। फिर भी मैं आखिर में आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को आंसर करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। थोड़ा सा सब्र करें और अभी जो टॉपिक है इसको समझने की कोशिश करें। नेचुरल लॉ। अब हमारे पास है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं? वो राइट्स जो नेचर की तरफ से आपको दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके नेचुरल राइट्स में आते हैं सांस लेना। बाय नेचर यू आर अलाउड टू ब्रीथ। राइट टू लाइफ, जिंदगी आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, दिस इज गिवन बाय नेचर टू यू। नेचर ने दिया है, ये आपकी जिंदगी है, आप इसको जिस तरह चाहे जी लो, ये नेचुरल राइट्स है। कंप्लीट फ्रीडम, हर किस्म की फ्रीडम। जैसे एक जंगल होता है और जंगल में एक शेर रहता है, चाहे वो किसी को काले, ठीक है, या किसी का काना खुद बने, अपने फैसले खुद करना। ठीक है, किसी जगह पर सोना, किसी जगह पर नहीं सोना। तो ये सब क्या है? ये नेचर है एक शेर की। इसी तरह नेचुरल राइट्स भी है इंसान के, और वो इसके अपने हैं। कंप्लीट फ्रीडम है, एब्सोल्यूट लिबर्टी जिसको हम कहते हैं, ये नेचुरल राइट्स हैं। अब मसला क्या बनता है? मसला तब बनता है जब ये इंसान जो है नेचुरल राइट्स को हासिल करता है। अब एक शख्स जाएगा, वसाइल तो कम है, देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, वसाइल कम है, एक दरख्त है, वहां पर पल लटका हुआ है, और दो शख्स जाते हैं। बाय नेचर वो कह रहा है ये मेरी नेचुरल राइट है कि मैं इस दरख्त से पल ले लूं, दूसरा कहेगा कि ये मेरा भी नेचुरल राइट है कि इस दरख्त से पल ले लूं। तो दोनों फिर क्या करेंगे? लड़ेंगे। तो इंसान में जो क्वालिटीज हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, वो ये है कि वो हमेशा कंपटीशन में रहता है, कॉम्पिटिटिव है। एक दूसरा डिफिडेंस, मिसट्रस्ट वगैरह, इतना जो है किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। तीसरा वो ग्लोरी की तरफ भागता है। जब आप सीएसपी बन जाए, अभी आप कंपटीशन में हैं, अब आप जो है एग्जाम में compete करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फिर आप सीएसपी बनेंगे। जब आप सीएसपी बन जाएं, फिर आप चाहेंगे कि मैं चीफ सेक्रेटरी बन जाऊं, फिर आप वो भी बन जाएं, फिर आप कहेंगे कि मैं
रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिशियन बन जाऊं, मैं वजीर आजम पाकिस्तान बन जाऊं। फिर आप जब वो भी बन जाए तो फिर कहेंगे कि मैं ये। इंसान हर वक्त इस ग्लोरी के पीछे भागता रहता है कि मैं मशहूर हो जाऊं, फेम जिसको हम कहते हैं, शोहरत के पीछे भागता है। इसी तरह थॉमस हॉब कहता है कि ये सारी क्वालिटीज है इंसान में, और यही वजह है कि फिर वसाइल तो लिमिटेड है, ये कंपीट करेगा, ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे, और यही इंसान जो है नेचुरल राइट्स इस्तेमाल करके और अपनी नेचुरल लॉज को फिर जो है उसको इस्तेमाल करके एक स्टेट ऑफ वार में आ जाते हैं। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट कि स्टेट ऑफ वार में इंसान क्यों रहता है। तो थॉमस हॉब्स कहता है वो इसलिए क्योंकि इंसान जो है नेचुरल लॉज भी रखता है, उसके अपने नेचुरल राइट्स भी हैं, वो मुकम्मल फ्रीडम चाहता है, लिबर्टी चाहता है, और उसकी बिना पर जो है वसाइल जो है वो कम होते हैं, वो हमेशा कंपटीशन में रहता है, और कंपटीशन में होने की वजह से वो लोग फिर एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं। और एक और जबरदस्त वजह वो फिर बताता है, दैट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। अपने जात को प्रिजर्व करना। माइट इज राइट वाली बात आती है ऐसे स्टेट में कि एक शख्स दूसरे से कंपटीशन में है, वो उसको खत्म करना चाहता है, तो फिर वो क्या चाहेगा, माइट इज राइट, जो ताकतवर होगा वो जो है सब कुछ हासिल करेगा। थॉमस हॉब्स के मुताबिक एक और नजरिया भी है थॉमस हॉब्स का, और वो है कि इंसान जो है, इंसान सारे के सारे इंसान बराबर है, ऑल आर इक्वल। फिजिकली अगर थोड़ी बहुत चेंजेस आ भी जाएं, एक मोटा है, एक पतला है, एक लंबा है, एक शॉर्ट है, वो आ जाए वो अलग चीज है, लेकिन इसके बावजूद भी इक्वलिटी है। इंटेलेक्ट की इक्वालिटी, माइंड की इक्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू माइंड अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स एवरीवन इज इक्वल, हम सब बराबर हैं। इट इज द डिफरेंस इज ओनली द एक्सपोजर ऑफ यूअर्स टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। अब एक शख्स है वो अमेरिका जाएगा, वहां पर स्टडी करेगा, ठीक है, इसी तरह जो है वो जाएगा किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में जाएगा, वहां पर पढ़ेगा, फिर जब वो वहां से आएगा तो जाहिर ही बात है उसका एक्सपोजर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों को हुआ है, तो वो ज्यादा अच्छी बातें करेगा, ज्यादा क्रिटिकल थिंकर होगा, ज्यादा जो है उसका माइंड खुला होगा, ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। और एक दूसरा शख्स है वो गांव के किसी दूर पहाड़ के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी है और वहां से इल्म हासिल करता है, तो उसका माइंड भी उतना ही होगा। अब एक शख्स है वो गांव के छोटे रेस्टोरेंट में खाता है और दूसरा जो है KFC और मैकडोनल्ड्स में खाना खाता है, वहां का एक्सपोजर उसे हुआ है, दूसरे को छोटा एक्सपोजर हुआ है। तो अगर देखा जाए तो दोनों जो है माइंड के लिहाज से, इंटेलेक्ट के लिहाज से बराबर हैं, लेकिन एक्सपोजर इनका अलग अलग हुआ है। अब औरतों को आप घर में रखे, मर्दों को बाहर निकाले, तो औरतें तो जाहिल की जाहिल ही रहेंगी, क्योंकि इन लोगों की बेचारियों की जो है एक्सपोजर ही नहीं हुआ है। मर्दों को भी इसी मैदान में उतार दो, औरतों को भी इसी मैदान में उतार दो, दोनों से जो है फिर रिवोल्यूशनरी चेंज आएगा। दोनों को तालीम के लिए एक्सपोज कर दो, गिव क्वालिटी एजुकेशन टू बोथ। मार्केट की बात आ जाए तो दोनों को मार्केट में उतार दो, मर्द भी जो है दुकान चलाएंगी, औरतें भी जो है दुकान चलाएंगी, फिर आप देख ले एक जबरदस्त प्रोडक्टिविटी आएगी, औरतें भी जो है पैसे कमाएंगी, मर्द भी पैसे कमाएंगे, जाहिर बात है। तो इंटेलेक्ट जो है, ग्रोथ जो है, फिर औरतों का भी वही होगा जो मर्दों का है। इसी तरह थॉमस हॉब्स यही बताता है कि इंटेलेक्ट के लिहाज से या इंसान की जो क्या है माइंड है, उसके लिहाज से हम सब बराबर हैं, वी आर ऑल इक्वल, हम सब बराबर हैं। आपका सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज होता है, एक्सपोजर चेंज होता है। अब इक्वालिटी, जब सबकी इक्वालिटी आ जाती है, मैं और आप और सब कुछ अगर बराबर है, सो देयर विल बी कंपटीशन,
इनमिटी, दुश्मनी, ये सब आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि वसाइल लिमिटेड है और एक इंसान दूसरे इंसान के साथ फिर इन वसाइल के ऊपर लड़ता है, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों को वो चाहिए, तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे। और यही वजह है कि थॉमस हॉब्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट दी एवरी अदर मैन। हर दूसरे शख्स के साथ वो जो है हालत जंग में रहता है। ये क्या है? स्टेट ऑफ वॉर और स्टेट ऑफ नेचर दोनों एक चीज है अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। और ये भी वो फिर क्यों बताते हैं? वो कहता है कि इंसान बाय नेचर जो है वो सेल्फिश भी है, वो कोऑपरेटिव नहीं है, वो सोशल नहीं है, वो सेल्फिश भी है, वो ब्रूटल भी है, वो बारबेरिक भी है, वो अनसिविलाइज भी है, वो ट्रेचरस भी है, वो हर बुरा काम जो है, इवल जिसको हम कहते हैं, ह्यूमन इज इवल बाय नेचर, वो बाय नेचर जो है इवल है। अब वो कहता है कि वक्त के साथ साथ लोग हर हालत में क्या है, ऑल द पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर लिव इन कांस्टेंट फियर। वो कांस्टेंट फियर में है। मैं आपसे डरता हूं, आप मुझसे डरते हैं, एक दूसरे से ये सारे के सारे लोग डरते रहते हैं। फिर लोग क्या करते हैं? इस डर से तंग आ जाते हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुआहिदा करते हैं कि चलो हम सब मिले और इस डर को खत्म करें। हम सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए अपने कुछ नेचुरल राइट्स, अपने कुछ हकूक, अपने राइट्स कुर्बान कर देते हैं दूसरों के लिए, और दूसरे अपने नेचुरल राइट्स कुर्बान करेंगे मेरे हकूक के लिए, और इसी तरह जो है हम एक सिविल सोसाइटी बना लेंगे और नेचर में जो है हार्मनी से रहेंगे, पीस से रहेंगे। फिर जो है उसके लिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अल्फाज हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, वो कहता है कि शख्स जो है एक इंडिविजुअल, वो ये कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कि आई अथराइज यू ऑफ ऑल द गवर्निंग राइट्स ऑफ माई सेल्फ, कि मैं आपको अथराइज करता हूं जो भी मेरे गवर्निंग राइट्स हैं अपने जात के, जिसके जरिए मैं खुद को गवर्न करता हूं तुम्हारे लिए, ऑन द कंडीशन दैट यू अथोराइज मी ऑफ ऑल यूर गवर्निंग राइट्स इन द लाइक मैनर, कि आप भी मुझे इसी तरह जो है अपने तमाम के तमाम राइट्स देंगे। इसी तरह ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना। फिर हॉब्स कहता है कि अब ये तो दो शख्सों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सपोज एक वक्त इस तरह आता है कि एक शख्स दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है, तो इसके दरमियान फैसला कौन करेगा? फिर फैसला करने वाला जो है होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट रहता है जब इसमें थर्ड पार्टी मौजूद रहती है। दो बंदों के दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर ये हो जाता है कि ये लोग, ये तमाम सोसाइटी के लोग एक शख्स को मुनार्क बना देते हैं, सावरन बना देते हैं, उसको एम्पावर कर देते हैं विद अनलिमिटेड पावर्स, उसको अनलिमिटेड पावर्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अब ये शख्स जो है हमारे फैसले करेगा और ये शख्स हमें बाउंड करेगा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी ना तोड़े। और इसी तरह एक जबरदस्त एब्सोल्यूट सावरन वजूद में आता है, एब्सोल्यूट सावरनिटी वजूद में आती है, एब्सोल्यूट मोनार्क वजूद में आ जाते हैं फॉर द सेक ऑफ पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, के सोसाइटी में जो है पीस हो, कॉमन हो। और फिर थॉमस हॉब्स कहता है कि ये सावरन जो है इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसकी बातें लॉ हो, लॉ। तो अकॉर्डिंग टू अगर लॉ अगर देखा जाए तो थॉमस हॉब्स कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सावरन, कि कानून जो है ये सावरन का एक कमांड है। बड़ी खूबसूरत बात है अगर आप लोग इस पर देखें और अंडरस्टैंड करने की सोचें।
कि लॉ क्या है, इज द कमांड ऑफ सॉवरन। इतना पावरफुल है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत भी नहीं है। इससे हमारे लिए एक और पॉइंट भी आता है और वो ये है दैट थॉमस हॉब्स डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता ही नहीं है। ही डज नॉट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता ही नहीं है। ही ओनली बिलीव्स इन एब्सोल्यूट मोनार्की, और वो कहता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की के अलावा इन लोगों को कोई शख्स भी ठीक नहीं कर सकता। आई होप यहां तक आप लोगों का कंसेप्ट सही जा रहा है। तो सॉवरेनिटी पर जब भी क्वेश्चन आता है, आप ये सारी बातें जो है एब्सोल्यूट मोनार्की में कोट कर सकते हैं और थॉमस हॉब्स के ये आइडियाज कोट कर सकते हैं। फिर कहता है कि कोई शख्स जो है, कोई भी शख्स सॉवरन को चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होंगे, वो जो कहेगा वो कानून होगा। तो एक और पॉइंट भी हमारे साथ आ जाती है और वो ये है दैट थॉमस हॉब्स वांट्स अ टोटलिटेरियन स्टेट, ऑटोक्रेटिक स्टेट। वो ऑटोक्रेटिक स्टेट चाहता है, एक शख्स का रूल हो उसमें और उसकी ही सारी अथॉरिटी हो, और उसके नजरियात जो है मिकावेली से मिलते भी हैं। अच्छा, आई होप यहां तक आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा बहुत जॉन लॉक को देख लेते हैं और इसी के साथ उसकी कंपैरिजन भी करते हैं, और क्वेश्चन भी जब आएगा तो कंपैरिजन पर आएगा कि जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स और रूसो के जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है या स्टेट ऑफ नेचर के नजरियात हैं, वो आप लोग कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें और फिर उस पर आप लोगों ने बातें करनी है। अच्छा, हॉब्स का नजरिया ये था दैट ह्यूमन इज इवल बाय नेचर, कि ह्यूमन जो है नेचर के लिहाज से